1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रेवलेशन 17 चैप्टर, ज़करिया 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, ज़करिया की भविष्यवाणी की पुस्तक 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। हम पहले पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, वही वचनों को फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, आपके बिना हम ये वचन समझना असंभव है। इतना कुछ तूने हमको बताया है, यीशु मसीह कौन है, कैसा है और क्या करता है। इससे ज़्यादा परमेश्वर पिता हमें कोई नहीं बता सकता है। कोई इस दुनिया की हस्ती हमें सिखा नहीं सकती है जितना तूने हमें यीशु मसीह के साथ एक मन कर दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये आनंद भरा एक मन होना, यही हमारा सेलिब्रेशन है खुदा, और इसके अंदर हम भरपूर हो चुके हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा फादर गॉड। इस वचन के पढ़ने के वक्त में और ज़्यादा हमें आनंदित कर पिता, और तुझ में हमें स्थिर कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 17। The woman arrayed in purple and scarlet, and there came one of the 7 angels which had the 7 vials, and talked with me, saying unto me, Come hither, I will shew unto thee the judgment of the great war that sitteth upon many waters, with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her fornication. So he carried me away in the spirit into the wilderness, and I saw a woman sit upon a scarlet colored beast, full of names of blasphemy, having 7 heads and 10 horns. And the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. And I saw the woman drunken with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great admiration. And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast that carrieth her, which hath the 7 heads and 10 horns. The beast that thou sawest was, and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, when they behold the beast that was, and is not, and yet is. And here is the mind which hath wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sitteth, and there are 7 kings, 5 are fallen, and 1 is, and the other is not yet come. And when he cometh, he must continue a short space. And the beast that was and is not, when he is the 8th, and is of the 7, and goeth into perdition. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast. This shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them. For he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called and chosen and faithful. And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the war sitteth, are peoples and multitudes and nations
nations and tongues, and the 10 horns which thou sawest upon the beast, this shall hate the war, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. For God hath put in their hearts to fulfill his will, and to agree and give their kingdom unto the beast, until the words of God shall be fulfilled. And the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. हम इन्हीं वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय बीएसआई बाइबल में से, बड़ी वेश्या 17 अध्याय पहले वचन से। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तो क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का, जिस पर वह सवार है, जिसके 7 सिर और 10 सींग है, तुझे भेद बताता हूँ। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था, पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले, जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वह आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा है, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे, और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे, और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी है, वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। हालेलुया। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। जो 10 सींग तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे, और उसे लाचार और नंगी कर देंगे, और उसका मांस खा जाएंगे, और उसे आग में जला देंगे। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो ले, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमें ये वचनों के रहस्य
ठीक तरह से समझने के लिए सहायता कर। नासरी यीशु के नाम में विनती करती हूँ, फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, और पिता ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।